DHU, second day. So first of all, let me inform you all that due to some unavoidable circumstances, our anchor is not present today. So I'm going to conduct today's session, and I welcome you all in today's wonderful debate. Now let's come to the point. As we all know, that the center has decided to repeal the three controversial farm laws. Because these three laws, they all had witnessed widespread protest from farmers. Now, on the auspicious occasion of Murugan on Friday, the announcement which was made by NDA government, it was seen to be a landmark announcement, landmark decision. Because we all know that there has always been a long-pending demand when it comes to agriculture sector and agriculture business. So this government has come up with three laws. Now, friends, as we all are aware of what three laws are, but let me remind you all. The first is the Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. And the second, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020. And the third, which is one of the most important also, the Essential Commodity Amendment Act 2020. So, what is the bone of contention? Why this debate has been organized? Friends, these three laws, according to central government, it has been introduced with an intention to promote agriculture, to promote farmers' income, to promote business. But there are some group of farmers who believe that they are not pro-farm. So in these protests, in all the dynamism which is going on, including the nationwide blockade, Singhu border protest, and all this thing, and names like Kishan Mukti, Sanyukta Kisan Morcha, these all have been there. So these all are the dynamism. Just an introduction to all. So today we are going to talk about a very important issue which is concerning the economy, the polity, and most important, the agriculture sector of India, of our nation. I hope that you all have prepared very well, but what I am seeing is that nobody is here who is going to speak against the motion. So, but we should proceed further, and I hope that it's going to be a very exciting and very enriching experience for all of us. So let's start. And before starting, because just let me introduce you the rules of the debate. We have two rounds as usual. The round one will be of 3 minutes. You will be given 3 minutes to present your views. No one is going to interrupt you in the first round. And in the second round, you are open to just counter others' argument. And as you are seeing, there is screen timer. The timer is available on the screen. You can just refer it to manage your timing. And the second thing is that this entire session will be recorded and it will be uploaded to our YouTube channel so that you can just watch your performance, analyze it again and again. Now, what we are waiting for? Let's start. So, who is going to start first? Sure. Aditya, you can start. Just take your time and all the best. Motion is that this club believes that repeal of farm law is a failure of central government to negotiate before the FZ farmer pressure. See, I utterly support this motion, and this is not the first time when this government took full 180-degree turn. If you remember, the land acquisition bill 2015 was also put back into the hut, and the thing which is common in both the U-turns is hashtag election. The land acquisition bill was withdrawn 2 months before 2015 Bihar poll, and now the legendary farm reforms are pulled as election are ringing the doorbells. I don't know the inner core politics that why the laws are being taken back, but if we hear the words of PM, it was हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. I want to say you sir, you can't get the favor of 100% bodies as you are in giant majority in the Lok Sabha with only 31% vote in 2014 and 37.36% in 2019.
which means majority of people don't favor you, or they bloody just hell don't care to participate in the biggest festival of hashtag Indian democracy. So this reason is just not at all acceptable. Point number two is that if you played this gamble, or let's say uh, a very good move to hit the upcoming election in favor of BJP, then the slogans like 56 inch ka सीना इनमें देश नहीं झुकने दूंगा said to be proved wrong. Because if party in such a majority in the club brings agri reforms and could not impose them, it's challenge for upcoming government to think of bringing agri reforms. Around of 60% people in this country lies on agriculture, with around of 15 to 20% contribution in India's GDP. This data is not so pleasing. And point number three is that some element in this country have derived a formula to put India's economy into the pot and flush it at the time when it start to recover. Formula is again hashtag so-called peaceful protest, and this government being so scary could not find an antidote for this virus. The CAA protest is an example where laws were not even applied on the Indians, and yet some of child started protesting, and this was and this government was protecting the right to protest, where fundamental right of lakhs were hindered. This so spineless government I have never seen before. And lastly, and definitely not the least, I would like to draw attention of you all, where the words of Dr. Ambedkar while he was addressing the Constituent Assembly on November 25, 1949, is that the tools which was used in the British Raj has no place in democratic constitutional method, including non-cooperation, civil disobedience, etc., etc., etc. And protests are still on. Demand for law on MSP has been projected by the protesters. I would be very glad to hear anybody in the club who can explain how laws on MSP is solution for this problem and futuristic good option for national economy and Kishan. So you all were hearing my views, and thank you. Okay, Aditya, you have really spoken very well. So I would like Divya to just present her judgment. Divya, are you there in the meeting? Okay, I think she has left. So, okay, just one positive and one negative for Aditya. First thing that yes, you spoke very well and you have presented it in a very aggressive tone because this is the primary requirement when it comes to debating. And you have just very concisely, very precisely, you have presented your thought. But I think more opinion can be articulated, and this topic can be approached multidimensional, so you can improve there. Okay. Now, anyone who is going to speak against the motion, I think against the motion, if anyone want to present their opinion, okay, then Neelam, you can go. I think you are in favor of the motion. You can present your opinion. Okay, hello everyone. Good evening. This is Neelam. So, the topic is about the failures of government regarding the farm laws. So, I believe that the holding back of government from the laws is its failure of present because of many reasons. The first one is the laws were passed undemocratically. It was passed without any consideration of state government or farmers leaders and in the lack of discussion in houses, and it was passed through ordinance, which shows the lack of transparency. And the other thing is there are some flaws which government may have realized now. As government said that if farmers will have more option to sell their produce from the outside of mandis, they can gain more profit. But reality is something else. Small farmers are not able to bargaining with big merchants, and the situation and at that situation, farmers can be exploited by corporates.
As well, government claimed that with more options, farmers will sell their produce there where they get more profit. Although it is well known that only 6% of farmers are able to sell their produce in APMCs, and they are able to get the profit, and they are able to sell their produce on MSP. So here is the need of strengthening MSP so that the agriculture and farmers condition can be improved, and production can be enhanced. And there was other clause in bills, that is the Essential Commodities Amendment Act. It was also the very harmful for farmers because they are not so able to store they have not so capacity of storing the products, and at that situation big merchants also will be benefited, and the farmers will go in loss. So because of this reason, I can say that government are rolling back. Thank you. Okay, Neelam, you have presented your opinion in a fine way. So the positive thing was that your content was good because you have articulated data, fact, etc. But you can work on your speaking skills, especially because, uh, especially if I talk about the fluency. So you can work there. Otherwise, it was awesome. So thank you for presenting your views. Uh, so Abhinav, do you want to say something? Prerna, I have to ask a question to Neelam. Can Uh, oh, yeah, yeah. Just wait for I will ground you? 1 minute. Okay. Yeah, yeah, sure. Okay, okay. So Abhinav is a spectator. Sure. Okay, because we are seeing that very less participation today. I don't know why. Maybe exams and other things are there. So now let's move for round two. And as we all know that it is going to be an open discussion. Now, any type of question related to this bill, especially the farm bills, and whatever all dynamism which is going on, especially the polity and economy, society, how all is getting affected by this. Let's discuss. Okay, so you can start, Aditya. Yes, Prerna. The speaker said that MS we need to strengthen our MSPs, as we all have seen and heard in the news that farmers, so-called farmers, are asking, demanding for law on MSP. I want to ask that how MSP is a solution and futuristic good idea for national economy and also farmers. Economy, quote unquote economy, how it's helpful and not bad. Okay, so Neelam, Yeah, uh, yeah, because as we know that now more population are means involved in agriculture more than other sectors, but the GDP contribution of other sectors are more than agriculture. So, so can you think what may be the reason? Because there are agriculture is one of the main sector on which other sectors are dependent, but agriculture are going backward. So I think that if government are not doing this type of thing, like if farmers are not provided the MSP, so I think it can't be improved. Their means their condition can't be improved because uh, this was brought about to for the improvement of agriculture. And if okay, now it will removed, then
then it's not good for agriculture. And Oh, it will be like the privatization of agriculture, because they are living free to sell their any. okay, okay. Neelam, actually, there has been a demand, or there is an increasing demand to legalize MSP. Even after repealing the farm laws, what has been observed is that farmers are not ready to go back. Now they are asking to legalize MSP. So how it can boost economy? I think that was the question of Aditya, Yes, sure. if I am not wrong. No, yes, yes. My question was same, and I emphasized on quote unquote economy. I said twice or thrice, and Yeah. and still and still not answered that how law of legalization of MSP will not put tension on our economy, because the MSP are also given by a taxpayer money. Then अभी तो 100 रुपए का पेट्रोल है, तब 250 का मिलेगा. Then what will you do? So Neelam, can you just elaborate it if you want? I mean, how it can boost economy? Okay. Okay, friends, let's talk about another aspect because there are different other dimensions. Because now what has been observed, there are some scholars, because as we have gone through different articles, different newspaper editorials, and different reports, they have mentioned that it has been a pragmatic and a very practical step which is adopted by NDA government by repealing the formulas to gain just stabilize the political scenario and to just stop all the kind of things which are going on, different death, destruction, strike, protest, road blockage, transportation, everything is getting affected. So why we are not seeing this picture? I mean, today everyone is just accusing the government कि government is very weak, in a weak position. So why we are not seeing that it is a practical step? It may be a practical step by government. No, Pranam, my answer is that then why we should not take back CAA? However, it has not been implemented till now, but the protests were also on CAA, and Article 370 should also be taken back. And what the words of PM was कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो क्या कुछ किसानों के लिए हम पूरे देश के लिए मतलब कि ऐसा कर देंगे? And I'm not able to understand this, and I said this reason is not at all acceptable. कि जो रीजन प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, आप कुछ किसानों के लिए आप एक लॉ को नहीं रिपील कर सकते जो कि मेजर किसानों के समर्थन में था, उनकी आय को दुगनी चौगुनी जो भी हो सकता है उसको करने का मादा था उसमें. My answer is that, and if you are doing for the sake of election, then you are not a good party, because क्योंकि इनकी पार्टी was saying that मैं देश नहीं झुकने दूंगा, 56 इंच का सीना means this and that, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, राम मंदिर. However, Ram Mandir was not there, not on there, where it was Supreme Court's decision on that. But then also it is not at all acceptable that आपकी कुछ किसानों को समझा नहीं पाए. Okay, okay. So और anyone और और want to और remark? मेरा एक पॉइंट और है कि अगर आंदोलन हो रहा है उसमें कुछ मिसचीव एलिमेंट्स हैं, तो क्या उन मिसचीव एलिमेंट्स के लिए आप एक संवैधानिक रूप से जो भी लॉ पास हुआ है आप उसको वापस ले लेंगे? आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, आपके पास दिल्ली पुलिस है, आप फिर वो किस दिन के लिए है? जब But 26 Aditya, there was a problem that ordinance के तहत ये लॉ पास हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसका मिसयूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ने. नहीं, तो प्रेरणा शायद ये प्रेरणा भी एक कारण है. अगर आप इसको फॉलो कर रही होंगी, आप ये देखेंगे कि पूरे किसानों को जो भी एडवोकेट कर रहा था वो कभी भी इन लॉज के ऊपर बात नहीं कर रहा था. मैंने जितनी भी टीवी डिबेट्स देखी मैक्सिमम, उसमें कोई भी इन लॉज के किसी भी पॉइंट वाइज नहीं कोई बात कर रहा था. सब लोग बोल रहे थे कि काले कानून वापस करो, काले कानून मतलब कि वापस करो. द गवर्नमेंट वाज रेडी टू डिस्कस इट ऑन क्लॉज वाइज, बट दे weren't. Okay, okay.
मीन्स So हमारा Neelam, ये बोला है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स करते उसमें, ठीक है, अगर उसमें कुछ खराबी थी तो आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर देते। देखिए, एग्रीकल्चर का संपूर्णतः निजीकरण नहीं हो रहा था, जैसा कि हम लोग का पहला इसके पहले वाला डिबेट इसी टॉपिक के ऊपर था, तो उसमें मैक्सिमम लोग मिश्रित इकोनॉमी के समर्थन में थे। इसमें एपीएमसी को बैन नहीं किया जा रहा था, और जब किसानों ने कहा कि हमको इसका मतलब कि लिखित में आप दें, तो गवर्नमेंट वाज रेडी कि हाँ हम आपको लिखित में दे देंगे कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, लेकिन इन लोग को बस काले कानून वापस करो, ये रट लगी हुई थी। okay. Especially if you see that farmers of Punjab, Haryana, Western UP, they are more involved. तो कहीं ना कहीं एक डर है कि एमएसपी से मिलने वाला जो उन्हें फायदा है, स्पेशली द स्टेट नो, गवर्नमेंट आई ऑफ वांट टू दिस। आस्क कि फार्मर्स और मिडिलमैन। ओके, एग्जैक्टली। सो आई थिंक नीलम हैज अ क्वेश्चन, और इफ यू वांट टू रिप्लाई दैट, नीलम। She have network issue, maybe because her camera is not mute and she is not speaking, so I guess हाँ Okay, Neelam, am I audible? Okay, there may be some network issue. Okay. So let's try to see another portion of this entire issue. एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि शायद एक बहुत लंबे समय से चलने वाला जो एक क्लैश था दो पार्टीज के बीच में, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमेशा से, चूंकि हमारी जो केंद्र में सरकार बनी है अभी तक, एग्रीकल्चर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है हमेशा से। तो क्या ये खत्म हो गया? मतलब एक बहुत पॉलिटिकल क्लैश जो था इस रिपील के बाद, क्या ये खत्म हो गया या आगे भी ऐसा चलता रहेगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि एग्रीकल्चर आज तक इस देश में कभी भी इकोनॉमी का मुद्दा रहा ही नहीं है। एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। हम आपको एमएसपी दे देंगे, आपकी की खाद के ऊपर आपको क्या बोलते हैं उसको कि सब्सिडी दे देंगे, फिर आपका कर्ज माफ हो जाएगा। दिस एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। इसमें इकोनॉमी कहीं नहीं आती। आप केवल किसान को बैसाखी दे रहे हैं, आप उसको अपने खुद के पैर पे खड़ा होने का आप उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखिए, अगर अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया, क्या आज तक जो भी एग्रीकल्चर था, क्या उसमें किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था? कर रहा था ना। तो फिर अगर इतनी जेंट मेजोरिटी में अगर एक पार्टी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो फिर आगे कोई भी पार्टी इसको लाने की पहली बात हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। दिक्कत इस बात का है कि एग्रीकल्चर, जिसमें कि हमने आपको बताया कि लगभग 60% और एक्चुअल इससे और ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया कि 60% लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये एक इकोनॉमिकल मुद्दा है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मुद्दा कि चुनाव आते ही आप कर्ज माफी कर दें और ये सब अच्छा हो जाए। कर्ज माफी से किसान आत्महत्या करना नहीं बंद कर देगा। Okay. I mean, you just want to say कि it has taken a political color and especially just It seeing. has not Prerna, it is Okay. जब से मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल मुद्दा, जब से हमने होश संभाला है तब से तो ये इकोनॉमिकल मुद्दा रहा ही नहीं। जब से हमने राजनीति में कुछ न कुछ समझना स्टार्ट किया है, इट वाज ऑल अ पॉलिटिकल टॉपिक। Sure. Hello Rinki, am I audible to you? Yeah. Okay, so what you will be speaking today? I mean, you want to favor or against the motion? If you have seen that. Yeah, Neelam, I'm just coming to you. हाँ, मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि मतलब अब वैसे तो अगर वो इस कानून को लागू किए फिर भी कोई इसके फेवर में नहीं था, उसको वापस ले लिए फिर भी इसको कोई फेवर नहीं है, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। जो कर रही है सरकार वैसे ही। Okay, so it seems that you are quite neutral. Okay, so let me come to Suraj Vidyarthi. Okay, he has left. So Neelam, you can continue. I think there was some network issue. Neelam, am I audible to you?
Yeah, you are. Am I Aditya, audible? just wait. Yeah, you are. Just present your views. Am I audible? Yeah, exactly. You can continue. Okay. So I was asking to Aditya that have you any roadmap to how can means agriculture can be boosted Yes, I and have. the contribution of it in GDP can be enhanced. हाँ, हमारे पास है। और ये एक कोई 5 साल की सरकार इसको नहीं पूरा कर सकती। जो सोचते हैं इसके बारे में वो कुछ ऐसा है कि ये एक T20 मैच नहीं है, ये एक वनडे मैच नहीं है और ये एक टेस्ट मैच भी नहीं है। ये एक बहुत ही लंबी सीरीज भारत को खेलनी पड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए। आप समझ रही हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से भारत का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगी, क्योंकि हमारे पिता भी किसान हैं और अभी धान आके बाहर रखा हुआ है और हम अभी 50 बोरी उसको ऊपर छत पे फेंक के आए। देखिए, धान और गेहूं जो कि मैक्सिमम यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में होता है, इससे किसानों का भला हो नहीं सकता है। ये एक रीजन था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ले आने का, कि फार्मर्स को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो और भी क्रॉप्स की ओर जाए। लेकिन हम एग्रीकल्चर के ऊपर अब डिपेंड नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। उसका रीजन ये, हमको पहले क्या करना चाहिए, हमको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर ध्यान कैसे देना चाहिए, हमको रिमोट एरियाज में अच्छे पॉलीटेक्निक कॉलेज को खोलना चाहिए। ये नंबर वन है कि जब नीचे तबके के लोग अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे तो वो एक अच्छे टेक्नीशियन रहेंगे। और उनका काम क्या रहेगा कि जब वो लोग अच्छे हो जाएंगे तो भारत इससे, जो हम लोग के मैक्सिमम एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, उनको हम फिर इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत भारत के पास क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उतना अच्छे से मतलब कि नहीं हो पा रहा है। हो रहा है अभी, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि वी डोंट हैव मैन पावर एंड वी डोंट हैव स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर मतलब क्या कि चाइना हम लोग से आगे क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि चाइना ने अपने सारे खिलौने भारत में डंप कर दिए। भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज वी डोंट हैव स्किल्ड मैन पावर। हम किसानी के ऊपर नहीं अच्छा, जब कुछ तबका हम लोग का स्किल्ड, जब मतलब कि स्किल्ड मैन पावर हो जाएगी और हम लोग इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे, तो फिर एग्रीकल्चर में भी कंपटीशन कम रहेगा। नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या है कि देखिए ऐसा मतलब कि होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति के पास अगर 1 बीघा जमीन है और उसके अगर 2 बेटे हो जाते हैं तो फिर वो मतलब कि 2 बीघे में मतलब बढ़ जाती है। और ऐसा होते 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 होके आगे आदमी के पास बहुत ही छोटा टुकड़ा जमीन का बचता है। इससे क्या होता है कि इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसीलिए होता है कि हम लोग के पास ज्यादातर फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग के हैं। तो पहला नियम तो यही लाना चाहिए कि भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल सबसे पहले लाना चाहिए, अगर आपको इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो। और आपको एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश से एक इंडस्ट्रियल देश की ओर जाना चाहिए, जहाँ पे ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो, जहाँ पे अच्छे Okay, टेक्निकल मैन पावर रहे। so here is the question that why don't you think that if other countries are moving forward technology and industry, so why India should not India should not do the best in agriculture, and because food is the basic needs of life, and if India does best, so they can be self-reliant and can do something best, and can import export more and more, and can get losses profit. So why don't you think because of हाँ, हाँ, this you can reach India? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसका पीछे का रीजन क्या है कि हमको क्यों नहीं करना चाहिए, कि हमको कृषि प्रधान देश में ही क्यों नहीं रहना चाहिए। देखिए, पहले तो एक चीज प्रूवन है कि जितने भी देशों में उद्योगीकरण हुआ है, कैपिटलिज्म आया है, उनका
उत्थान हुआ है, और जिस जिस देश में समाजवाद रहा है वो देश पतन के ही ओर गया है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग एक्सेस फूड रिड्यूस नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करेंगे, एक्चुअली हम लोग करते हैं। आप गेहूं और धान का जाइए, एक्सेस में है मैडम, और एक्सेस में नहीं है, सड़ जा रहा है, हम लोग के पास उसको स्टोर करने का नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि चलो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब से जिस रेलगाड़ी में गेहूं रख के आता है, वहाँ के लोकल लोग उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड। वो इतना खतरनाक गेहूं है जो कि अभी ये यहाँ पे अरे कि राशन कार्ड पे लोगों को मतलब मिलता है वो अलग गेहूं, कि वहाँ पे इतना ज्यादा हैवी यूज ऑफ एब्यूज ऑफ पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, कि उस रेलगाड़ी को लोग कैसे ट्रेन बोलते हैं। तो अभी इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर लें। आप समझ रही हैं मेरी बात? Sure. I think Abhinav has some points. Yes, Abhinav, you uh, can. yes. Suryans was saying that we should move forward to the industrialization, and you should know that in the COP, uh, also India has promised that he will he will reduce the amount of emitting the carbon dioxide and carbon monoxide as well. Then how Yes, sir. it could be possible that go for the industrialization, because we haven't any plenty sources of solar panel, because you should know that the Asia's largest, or we can say world's largest solar power plant is Bhatla, which is situated in the Rajasthan, and this scheme is running before the plan, because we are not sufficient to uh, develop such kind of technology which improve our solar power in a such limited time framework. जी, तो आपका क्वेश्चन क्या है? Then you are saying na, that we should move for industrialization as soon as possible. जी जी। Then why we should not take a step forward in the modern agriculture? अच्छा अच्छा। लॉन्ग ईयर एगो व्हेन वी ऑल दिस टेक्नोलॉजी वर नॉट देयर, वी वर आल्सो कॉल्ड सोने की चिड़िया। हाँ, ये भी रिलेटेड है। देखिए, हाँ, आपका इसका भी आंसर देते हैं। हम लोग को एक स्टेप एग्रीकल्चर में आगे लेना चाहिए। एक स्टेप लिए थे सर, वो एक स्टेप पीछे हो गया है। वो अगर आपको अच्छा भी नहीं लगता है अगर वो तो, लेकिन वो एक छोटा सा मतलब कि स्टेप ही था, वो स्टेप अब पीछे हो चुका है। अब हमको नहीं लगता है कि और भी सरकारें के पास इतना हिम्मत होगी कि वो एक स्टेप और फिर से लें। नंबर दो, जब भारत सोने की चिड़िया था तो आपको क्या लगता था कि उस समय, सर अगर आप देखे होंगे, अगर आप हिस्ट्री में अगर पढ़े भी होंगे, तो भारत का बहुत से सारे हैंडमेड गुड्स मिडिल ईस्ट में सर सप्लाई होते थे, और तब भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने क्या किया सर कि हम लोग के ऊपर जब इकोनॉमिक अटैक हुआ, हम लोग को अपने ही चीज जो हम लोग चाहते थे उनको उगाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई, और जबरदस्ती जो वो लोग चाहते थे उनको मतलब उगवाया गया, और यहाँ का रॉ मटेरियल वहां लेके जाके उसका फिनिश्ड सामान बना के यहीं लाके बेचा गया, तब इकोनॉमी बदतर हुई। Yes, this कृषि is the प्रधान point. रहे, लेकिन सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले भी था इंडिया में। ऐसा नहीं कि भारत पहले गेहूं दानी पैदा कर रहा था। भारत के हैंडमेड क्लोथ बाहर जाते थे, भारत के स्पाइसेस बाहर जाते थे, और भी बहुत सारी चीजें भारत मतलब की हैंडमेड चीजें मतलब बाहर जाती थी। Yes, this is the point that at that time we are not implemented, or we are not improving our policies and schemes, and in the present time this that was same happening. If your bill was right, then you have to stay on that point. Then if there were some need of improving that, you should follow the improvement in the bill. Then why you back on you should not back on the foot, I think. सर वही आज हमारा भी टेक है कि इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था। समझिए सर, मेरा भी मानना है कि ये अगर एक बेबी स्टेप था तो आपको एक नंबर आगे इसमें कि जाना चाहिए था। पहले आप देखते ना सर। लेकिन सर आप ये बताइए कि इन किसानों को इससे दिक्कत है, और इससे क्या दिक्कत है?
दिक्कत क्या एक्चुअली हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आया। अगर कोई इस क्लब में हमको ये बताए कि दिक्कत क्या है उस बिल से, तो हम उसका आंसर मतलब देने की एक बार की चेष्टा कर सकते हैं। Okay, Aditya, actually, when we talk about democracy, especially अगर हम इंडिया की बात करें या और भी जितनी भी टॉप डेमोक्रेसीज हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो कहा जाता है कि इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड स्पेशली पीपल हैज मेड द गवर्नमेंट। तो व्हाई कांट वी सी कि इट इज द प्रेशर ग्रुप, जिसमें से एक हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये एक वन ऑफ द लीडिंग प्रेशर ग्रुप है। तो कई बार बड़ी बड़ी सरकारों को भी इनके सामने झुकना पड़ता है। तो ये उनमें से एक इंसिडेंट हो सकता है कि सही इंटेंशन होते हुए भी सरकार को ये वापस लेना पड़ा। तो हम इसे इस प्रिज्म से भी देख सकते हैं अगर माने तो। नहीं प्रेरणा जी, तो फिर आपने CAA वापस क्यों नहीं ले लिया? आपने धारा 370 वापस क्यों नहीं ले लिया? उसके लिए भी सर Still, मतलब बहुत सारे हैं देखिए प्रेशर। CAA के लिए अभी भी कोई भी लेजिस्लेशन अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया है। उसको भी यस, लेकर वही अभी मैं आपको बोल रहा कंटेंशन इशू बना हुआ है। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अब जो है हमारी जैसे हमने देखा कि अमेरिका में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर वहाँ के सीनेट पे इतना बड़ा जो है हंगामा हो गया, या जो भी वहाँ पे इतने सारी कैजुअलिटीज हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब हमारी डेमोक्रेसी में पीपल जिन्हें एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, क्या वो निगेटिव रोल प्ले करने लगी है कि बड़ी बड़ी सरकारों को भी उनके सामने या खुद लेजिस्लेटर को झुकना पड़ रहा है? क्या मतलब ये एक पीपल ऐसा टर्न पीपल आउट? पीपल आप नहीं बोल सकती। देखिए, आप पीपल नहीं बोल सकती क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के किसानों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। आप बिहार, झारखंड और जितने भी इस इंडिया के साउथ पार्ट को अगर आप देखेंगे, जितने भी ईस्ट पार्ट को आप देखेंगे, वहाँ पे क्यों नहीं कुछ हो रहा है? वहाँ के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर उनको इतना ही दिक्कत है तो फिर वहाँ पे एक दिन रोड भी मतलब ब्लॉक क्यों नहीं हो गया? आपको केवल यूपी में भी मतलब आता उधर की मतलब कि वेस्टर्न यूपी, मुख्यतः पंजाब में अगर आप देखेंगे तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। यूपी में हल्का सा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में भी था बहुत ज्यादा, लेकिन उस तरीके का जिस जिस स्तर तक कि पंजाब में टोल प्लाजा वगैरह आज तक बंद है, उस स्तर तक अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ है। तो फिर ओके किसको इस दिक्कत है और क्या दिक्कत है? ओके, Okay, तो आदित्य, या अभिनव, यू कैन। okay. According to Aditya, there is no problem in the farm bill. Is it right? हिंदी में बोले सर। ओके, आपके अनुसार जो फार्मर्स बिल है उनमें कोई त्रुटि नहीं है आपके अनुसार? हो सकती है सर, हो सकती है सर। आप हो हो सकती सकती है, नहीं। बिल्कुल हो सकती है सर। मेरी बात सुन ले पूरा। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि एक सरकार उस बिल को पास करे और एक प्रेशर ग्रुप की वजह से पूरा और पूरा अचानक से वापस ले ले बिना किसी टॉक के। ओके ओके, मैं बताता हूँ क्या आप गलती। उसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं सर। ओके, हम बता रहे हैं। आप किसानों के साथ बात करिए, आप उसमें अमेंडमेंट करिए, लेकिन किसानों को भी उसमें अमेंडमेंट के लिए धरना देना चाहिए। आप ये बताइए, किसान जो तो एक्चुअल में वहां पे बैठे हुए हैं, जिनको किसानी की चिंता है, वो चाहते क्या हैं? अगर आप हमको ये बताएंगे। वो चाहते थे कि 3 बिल वापस हो जाए। यस सर, हो गया। अब क्या चाहिए? ओके ओके, आई एम टेलिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यदि आप बात करेंगे किसानों की, तो आज के दिन में किसानों की स्थिति क्या है भारत में, आपको क्या लगता है? विदाउट देयर इज even no, you know, what we can say, that any kind of insurance which is related to agriculture, there is no and we can say the any of them is not existing in the Indian and any government. Then how we can say that it's not important that we should have not MPCs? एमपीसी क्या होता है सर? No, no, वही सर, MSP. सर एमएसपी क्या होता है ना सर? देखिए, एमएसपी अभी कितने परसेंट let लोगों me को। finish, let me finish. सर अभी आपने अपना माइक ऑफ किया था, तब मैंने स्टार्ट किया। यू कैन कंटिन्यू सर। कि दो प्रॉब्लम ये है कि जो भारतीय किसान है उसके पास अपना जो परिवार चलाने के लिए या अपना जो लिवलीहुड है उसको चलाने के लिए केवल आप उसको, उसके पास कम से कम एक इंश्योरेंस तो हो कि हमारी जो हमने जो फसल इतनी मेहनत से उगाई है उसको हम कहीं जाके बेच सकें, तो हमको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय किसान का किस प्रकार से शोषण होता है बाजारों द्वारा और इंटरमीडियरीज द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है। और इस बिल में बिल्कुल है, इसमें जो मिस्चीवियसनेस है जो गवर्नमेंट की, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में ये ये एक रूल है कि आपको वहाँ पे वोटिंग करानी पड़ती है। तो
on that day there were not full attendance of in the parliament, and the government was very imposing that we should pass this bill on today. तो तो उन्होंने वहां पर भी ये गलती की कि उसको पास कराया, और वहां पर उन्होंने जो उसको कहते हैं मॉक वोटिंग। देन मॉक वोटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने उसको पास किया, और वहाँ के जो स्पीकर थे उन्होंने उसको पूरी तरह से जस्टिफाई भी नहीं किया, और उन्होंने उसको पास कर दिया। अब आपकी वहाँ पर जो बहुमत है, बहुमत के कारण ही और बहुमत के द्वारा ही आपने इसको प्रूव कर दिया, तो इसमें आपको Okay, okay. मिस्टीरियसनेस नहीं रहती है। Sure, Abhinav. So Aditya, you Yes, can. and there is no any provision in agriculture like fixed salary and pension type thing. There is no anything like that, and the main source of farmers are only the MSP. So this is the important thing. The solution is that you should आपको बिलीव देना चाहिए फार्मर्स को कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसान को अगर कृषि खेती की इतनी पड़ी है तो वहाँ पर क्या कर रहा है। आप अगर जाएंगे पंजाब किसान, यहाँ पर जो थोक में जो कृषि जो उपकरण है या जो प्रोडक्ट है उनको ले रहा है, उनकी कीमत क्या है, 1 रुपए 2 रुपए। अभिनव, आई थिंक इस बिल में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि एपीएमसीज को हटाया गया है, बल्कि एक सब्स्टिट्यूट दिया जा रहा है कि आप आउट ऑफ एपीएमसीज भी अपने जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि एक गवर्नमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप, इट वाज अ प्रोएक्टिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट। आई Yes, वेलकम इफ एनी कमेंट ऑन दिस। yes, you are right. There is no mention about the we are eradicating the APMCs, but we can say beside the APMCs, there is no institution for buying the products, agricultural products of farmer. Then where will farmer go? सर हमको नहीं पता कि आप बिजनेस को कितना फॉलो करते हैं। सर फ्यूचर हम बताएं ना क्या है, एथेनॉल और बायोडीजल का है। इसको कौन लेगा सर? एपीएमसी नहीं लेगी। ये किससे बनता है सर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो धान और गेहूं कटने के बाद जो स्ट्रॉज बच जाते हैं ना सर, ये उससे बनता है एथेनॉल आपका। ये कौन सी एमएसपी लेगी? कौन सी एपीएमसी मंडी इसको ले रही है सर? इसको कौन लेगा? मैं बता रहा हूँ, इसको लेगी प्राइवेट कंपनी। चिप्स बनाने वाली एपीएमसी नहीं लेती सर, उसको लेती है प्राइवेट कंपनी। और रही बात कि जिस दिन पास हुआ उस दिन 100% मेजॉरिटी में वहाँ पे सांसद लोग नहीं थे सर। जब धारा 370 राज्यसभा में पास हो रहा था तो उस दिन भी 100% लोग नहीं थे, और उस दिन भी बहुत बड़ा खेल हुआ था कि मैक्सिमम कांग्रेसमैन वहाँ पे थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धारा 370 वापस लेंगे। बात ये नहीं कि बिल पास कैसे हुआ या फिर कैसे नहीं, चलिए हम मानते हैं कि बिल गलत तरीके से पास हुआ। आप ये बात करिए कि बिल में है क्या, एक्चुअली बिल में गलत क्या है। और एक्चुअली अगर बिल में गलत है भी, ठीक है बिल में गलत, ठीक है हम मानते हैं, क्या किसानों को उसमें अमेंडमेंट की बात करनी चाहिए कि सीधे काले कानून वापस करो? आई डोंट वांट टू लिसन द हेल व्हाट यू आर टेलिंग। सर चलिए बिल वापस हो गया, काले कानून वापस हो गए, इट्स गुड। अब क्या करेंगे किसान? अब उनकी आय दोगुना कैसे हो जाएगी? एमएसपी पे सर हमको नहीं पता कि इस क्लब में कितने लोग इकोनॉमी से हैं, हम भी नहीं है सर एक्चुअली, लेकिन सर इकोनॉमी के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, क्या टेंशन होगा सर, आपको इसका पता है? सर पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर है ना सर, जब 250 का मिलेगा तो भी आप कंप्लेंट करने आएंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट में जो भी सरकार है सेंटर में, हर सरकारों में 250 का मिलेगा सर। जो एमएसपी दिया जाता है वो टैक्स पेयर के मनी से दिया जाता है, वो सरकार अपने पास से नहीं देती है। आपको तो सिंपल सी बात है, पता ही होगा। और किसानों की क्या कंडीशन वो हमको पता है सर, 3 पीढ़ी से किसानी हो रही है। अभी सर हम आपसे बताए थे कि अभी धान आके बाहर रखा हुआ है और हम ऊपर फेंक के आए, सब कुछ पता है सर। ओके आदित्य, अगर इस बिल में जैसे आपके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत सही है, तो सरकार क्यों नहीं नेगोशिएट कर पाई एक उस ग्रुप जो फार्मर का है? जैसे सीए का आप एग्जांपल दे रहे हैं या आर्टिकल 370 का दे रहे हैं, तो गुपकर अलायंस से अभी भी बातचीत चल रही है, वो भी दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव से उनका होता है अभी भी, तो क्यों नहीं कर पा रही है सरकार नेगोशिएट? That's why I'm supporting the motion, because this club believes that repeal of farm law is a failure of central government to negotiate before the HFZ farmer protest. मैं इस बिल के समर्थन में हूँ, इस वापसी लेने के समर्थन में मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस मोशन को आज सपोर्ट कर रहा हूँ।
देन व्हाट आर द वेज, आई मीन व्हाट आर द वेज, क्योंकि इस तरह से तो अगर होता रहा तो हम एट लार्ज देखें तो लोगों को तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सरकार को किस तरह से ऐसे इश्यूज को डील करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिपीलिंग एंड सीइंग देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, आई मीन व्हाट शुड बी द वे अहेड? Yes, this was my point number two, that if you played the gamble, or let's say move to hit the upcoming election in the favor of BJP, then slogan like 56 इंच का सीना and मैं देश नहीं छुपने दूंगा is said to be proved wrong. तो सर, अगर आप सीधे वापस ले रहे हैं तो सर ये आपको देखना चाहिए ना कि आप सरकार कैसे मतलब कि रन करेंगे। वो जनता आपको नहीं बताएगी कि आपको सरकार कैसे रन करना है। तो आप समझ ये तो आई थिंक इट्स अ डिलेमा। एक तरफ बीजेपी है, एक अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देख रही है जिसे स्टेट असेंबली का चुनाव देखना है, और दूसरी तरफ एक सरकार है, अगर न्यूट्रल देखें तो उसे पूरे लोगों का प्रेरणा, मैं 1.25 आपको करोड़ बताता हूँ, भारतीयों मैं का। आपको बताता हूँ और हाँ, CAA का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से लाया गया, बहुत ही जोर शोर से लाया गया। बंगाल इलेक्शन में क्या हुआ, CAA का कोई मुद्दा नहीं था वहां पे, जबकि बंगाल में CAA का मुद्दा लाना चाहिए था क्योंकि बांग्लादेशी वहां पे ज्यादा है। CAA का मुद्दा वहां पे लाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने वहां पे CAA का मुद्दा नहीं लाया। मतलब आई वॉज हैविंग अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन विद गवर्नमेंट, बिकॉज हमको ऐसा लगता था कि इन्होंने जब नोटबंदी किया, इन्होंने जब की GST लाया, तो ये होता है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो ही बिजनेसमैन है। और इनिशियल स्टेज में अगर आप देखेंगी तो ये जो कि GST और जो कि नोटबंदी हुआ, वो इनिशियल व्यापारियों को बहुत ज्यादा ही नुकसान दिया था। तो ऐसा लगता था कि ये अपना वोट बैंक नहीं देखते हैं, ये देश हित में काम करते हैं। लेकिन अगर आप धारा 370 को हटा दीजिए, चलिए ठीक है, वहां भी अभी कंडीशन एकदम से अच्छी नहीं हो पाई है। हाँ, वो एक प्रोसेस है जो कि एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। लेकिन CAA, एनआरसी में एक बार तो आप बोलते हैं कि एनआरसी आएगा और उसके बाद बोलते हैं कि अभी नहीं आने वाला, एनआरसी कभी नहीं आएगा। CAA अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2015 का लैंड एक्विजिशन बिल आपने वापस ले लिया। ओके, मतलब यू टर्न बट गवर्नमेंट, and this government is एग्जैक्टली, not able, to absorb द प्रोटेस्टर्स। आप CAA में भी देख लेंगे तो बेमतलब का आंदोलन हो रहा था, जबकि भारतीयों के ऊपर CAA लागू भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी ये गवर्नमेंट वहां के प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करा पाई। वो जब कि कोविड-19 स्टार्ट हुआ और उन लोग को ये लगा कि अब नहीं गए तो अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब जाके CAA वाला वो शाहीन बाग जो है कि वहां से खत्म हुआ था। तो ये आप डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बट बहुत ही आई वीक थिंक पॉइंट है। एक कम्युनिकेशन गैप है बीजेपी की, जो कि बहुत बड़ी वीकनेस है इनका। and there are different red tapeism and bureaucratic hurdles which are involved. But motion में जो कि एक लाइन बहुत ही clearly mentioned है कि it is the failure of central government, मतलब पूरे सरकार का फेलियर है। तो सरकार तो भाई एक पार्टी से नहीं बनती और ना कि किसी एक जो है पद से बनती है। तो ये क्या मतलब दर्शाता है, पूरे ही सिस्टम में करप्शन है, what it shows, what are its जिस implications? सिस्टम में करप्शन है, ये तो आज की बात नहीं, हमको पहले से ही पता है कि हर जगह है करप्शन। ब्यूरोक्रेसी में देखें तो है, जुडिशरी में देखें तो है, और लेजिस्लेचर का तो फिर क्या ही कहना। I want to ask a question. Hello. Yeah, sure Rashmi, you can. So I was listening to you all. You are continuously saying that there was a communication gap and the government was completely failed to convince farmers. But you are stressing over this so much. So I want to ask you that all right, it was a failure, but if we observe it from the starting, there were so many videos that the government is going brutal, it is the danger for democracy, all these things were happening. What would you say about that? May I answer this question? Sure. Okay, the basic point is about that. We know that the mass mentality is not good, and it's as well as it's not lasting for a long. Then, if you said that the government is totally failure, then the basic reasons for this, the first one is the mass mentality, that farmers should not go with the mass mentality, and
Another point, and we can say another reason is that from the government side, government should advertisement and should try to convince the farmer what are the profit for them. And I am सारा very घंटा sure ना that भाई there are some amendments and some improvements should be done. And I think today that is the government which is repealing the farm bills. And I should not in the favor of the repealing the farm bills, that instead of in the place, we can say there should be some improvements, some amendments happen in the farm bills for the betterment of the farmers. Because if we are also we are often says that the Bharat Krishi Pradhan Desh hai, then we are all of us here for the expecting the welfare and betterment of the farmers and agriculture as well. So this is my opinion. मेरा क्वेश्चन ये है कि 7 देशों में अगर जोड़ लिया जाए तो 18 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी मुख्यतः भारत में है, तो चलिए मानते हैं 10 करोड़। ये 10 करोड़ कहाँ है? किसको समझा रहे थे ये कि ये अच्छाई है, ये खराबियां हैं? हमको तो ये पूछना है कि बीजेपी आईटी सेल क्या कर रही थी, जो कि जब कानून मतलब आता है तो बोलते हैं कि अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब जब वापस हो गया तो बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। Yes, this is the my मतलब question is the same. है क्या? मतलब यही सर बात है. आता है तो अच्छा है कि जाता है तो अच्छा है? This is I can say that this is the logical fallacies. और हम लोग को मतलब बीजेपी के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए। वी वांट टू फोकस ऑन कि फार्मर्स की कंडीशन अच्छी कैसी है। So, can we conclude Adit's point as the farmers were misleaded? हाँ बिल्कुल, फार्मर्स वर मिसलीडेड। और मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये एक्चुअली फार्मर्स प्रोटेस्ट था? कितने फार्मर्स में अगर आए हम लोग के पास कि इतने किसान है टोटल देश में, इतने किसानों को इससे दिक्कत थी, कोई डेटा नहीं हम लोग के पास। केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, 2.5 स्टेट भी नहीं है But जिनको इससे दिक्कत थी। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ फार्मर्स, आदित्य, अगर आप देखें तो शायद मुझे लगता है कि अगर अपने एग्री एक्सपोर्ट की भी बात करें तो इन्हीं स्टेट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर तो आप आई थिंक देखेंगे तो फिर वेस्ट बंगाल ज्यादा है, तो फिर वहां पे ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर आप पैडी राइस देखेंगी तो फिर ये मैक्सिमम ये फिर वेस्ट बंगाल में होता था। और जबकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी था तो वहां पे ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठा। वहां पे तो मुद्दा जय श्री राम था। We can term it as misleading. We can say that मुझे ये जानना है कि एक्चुअली जो हमको हमारे बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सिंघू बॉर्डर पे जितने भी सो कॉल्ड किसान बैठे हैं, जिनको किसानों की के बहुत बड़े हितैषी हैं, उनको आखिर चाहिए क्या? पहली बात जो उनको चाहिए था कि 3 बिल वापस हो। यस सर, हो गया। हाँ ठीक है, मतलब हाँ सर हो गया, ठीक। अब क्या चाहिए? now they have more demands. I Why? think if you are following, they want to legalize, क्योंकि अब I think they are seeing it as an opportunity, क्योंकि अब गवर्नमेंट बैकफुट पर है, उनकी डिमांड के सामने झुक रही है, तो शायद उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं कि इसका अगर वो किसान है तो इसका मतलब ये है कि वो देश की आत्मा है, और देश की आत्मा कभी देश को खोखला नहीं करती है। जय जवान जय किसान का नारा लगता है। किसान इस देश का कभी खराब नहीं चाहेगा कि इस देश का कुछ खराब और ये देश गड्ढे में जाए। क्या एमएसपी को लीगल टेंडर बनाने से इस देश गड्ढे में जा रहा है कि देश का उत्थान हो रहा है? तो यस सर बनाइए, हम भी धरना नहीं देंगे। और अगर पतन हो रहा है तो सर फिर आप किसान कैसे? फिर आप एमएसपी अभी भी सर आप ये बताइए, हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो हम साइकिल चलाते थे और हमारी माताजी पीछे से पकड़ के चलती थी, लेकिन वो आज तक पकड़ के नहीं चलती है। एमएसपी वही माताजी हैं जो सपोर्ट दे सकती हैं। आजीवन आपको लेके नहीं चलना चाहिए। वो पीछे से कब छोड़ दी और कब हम आज स्कूटी लेके उड़ रहे हैं वो हमको पता है। तो एमएसपी आप किसानों को बैसाखी ही क्यों देना चाह रहे हैं? आप उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाइए ना। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन, हाँ बोले
जी, आई थिंक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिए हैं। स्किलिंग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करिए, ठीक है? आप जो है स्टार्टअप इंडिया उसके थ्रू भी मतलब मैं कहूँ अगर इंडस्ट्री जो अलाइड सेक्टर है, जो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया है। और अभी आप देखिए शायद एक न्यूज़ बहुत ही आ रही है मनरेगा को लेकर। इसमें भी गवर्नमेंट जो है आउट ऑफ फंड हो गई। कंप्लीटली बजट में जितना एलोकेशन था अभी लोगों को दे रहा है जो है उन्होंने दिया है स्टार्टिंग में कि आप आइए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है बट नाउ इट इज आउट ऑफ फंड सो हाउ कैन वी थिंक दैट व्हाट दिस गवर्नमेंट कैन डू एज फार एज क्योंकि इफ दे वांट टू सपोर्ट तो सपोर्ट करने के लिए वो आत्मनिर्भर भारत जैसे पैकेज लेकर आते हैं फिर आउट ऑफ फंड हो जाते हैं आउट ऑफ कैश हो जाते हैं तो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज सच अ आउट ऑफ वास्ट कैश मेजॉरिटी आउट ऑफ कैश प्रेरणा जी क्यों हो रहा है? आउट ऑफ कैश इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि उनको फ्री में राशन बांटना है, क्योंकि उनको एमएसपी करना है, और एमएसपी अगर लीगल टेंडर हो गया तो आउट ऑफ कैश ही नहीं, वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान से भी मतलब की और बदतर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वीट और राइस की कितनी पैदावार होती है, हद से ज्यादा पैदावार होती है, और अगर लीगल हो जाएगा तो सरकार की जिम्मेवारी बन जाएगी कि आप सबको 19, 20, 18 जो भी है, और तब Okay. Then I have a question. As far as demand of farmer is concerned, those who are जी protesting, क्या मुझे MSP एक ऐसा आप आवाज आपकी हेलो yeah, you can continue. हाँ I मैं think ये हमारा हमारा एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कोई एक ऐसा देश बता दें जो समाजवाद को एक्सेप्ट किया हो और वो आज फल फूल रहा हो और वो देश बट न गया हो 100 टुकड़ों में। सोशलिज्म I think exactly. I think in today's context, capitalism और socialism का प्रश्न जो है क्योंकि I think almost all economies are open और mixed economy का मॉडल हर जगह है तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कोई एक ऐसा देश है जो कम्प्लीटली इसको अडॉप्ट करके और जैसा आपने कहा आप रशिया का एग्जांपल ले लें या बाकी अदर स्टेट्स का जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया वहाँ पर डेफिनेटली जो है डिसइंटीग्रेशन देखा गया बट हम वेलफेयर स्टेट भी तो हैं उसके लिए हम क्या करें प्रेरणा जी कुछ तो आप ये वेलफेयर अब वही है कि इसके लिए बहुत सारी कहावतें भी हैं, हम कहना नहीं चाह रहे हैं वेलफेयर स्टेट बन के आप क्या करना चाह रहे हैं, यही तो है ना वेलफेयर स्टेट। ये अगर ऐसा वेलफेयर स्टेट होता है तो फिर किस बात का वेलफेयर स्टेट, मतलब अब मैं क्या ही बताऊं। आज ही पीएम का एक स्टेटमेंट आया है जब वो शायद कुछ जजेस को संबोधित कर रहे थे कि जितने भी देश डेवलप हो चुके हैं और वो जिन संसाधनों से डेवलप हुए हैं अब उनकी ये चेष्टा है कि जो डेवलपिंग देश है वो इन संसाधनों का प्रयोग करके डेवलप ना हो पाए। एक कॉलोनियल माइंडसेट है, ये आज का स्टेटमेंट है। It is right. In the COP20 COP26 meetings, the developed countries are imposing to the LDCs, which is least developed countries, that you should not use your resources and not exhausting them, because the environment is facing the problem of global warming and these things. But you should know that you are developed. Why? Because you have exhausted your resources. This is the point. Who have exhausted the resources? The developed countries, because they are developed because they have exhausted their resources and used fully. Yes, sure. And so why they are hindering us? Yes, because I they think want. it's all about I think it's all about sustainable development that we all are advocating today. अभी COP26 में इंडिया ने जो अपने अपने जो भी प्लान्स अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस लगता है और उसे धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा एक तरफ चैलेंज है एक डेवलपिंग नेशन जो कि अपनी इकोनॉमी 500 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ कार्बन क्रेडिट और बाकी चीज़ों की बात करते हैं हम तो शायद ये बहुत ही एम्बिशियस है। अब हमारा एक पॉइंट नंबर 3 था हमारा, जब आपने सुना होगा कि some elements of this country have derived a formula to put the Indian economy in the mode and flush it at the time when it start to recover। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी जब भी रिकवर होती है ये देश में अचानक से धरने क्यों स्टार्ट हो जाती है, मेरा ये क्वेश्चन है। आप शाहीन बाग देख लें,
इकोनॉमी रिकवर कर रही थी नोटबंदी और जीएसटी से, मतलब और वगैरह वगैरह से। जब कोविड से ये हुआ, ये हो गया। ये भी क्या मतलब, आप अगर थोड़ी सी भी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, चाइना वगैरह के ऊपर अगर आप कुछ भी अगर तिरछी नजर अगर होगी, आपको नहीं लगता कि ये क्या ये बाहर से फंडिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है? क्योंकि अगर एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लिया हम कहीं 7 दिन के लिए गए, कहीं रहना है हम लोग को परमानेंटली, ठीक है, तो कितने रिसोर्सेस लगते हैं, कितना खर्चा आता है। और किसान 1 साल से है, और जो कि भारत का किसान बहुत ही गरीब भी है, वो किसान 1 साल से वहाँ पे सस्टेन कैसे कर लिया? अब आप ये मत बोलिए कि यार ये किसान है तो पिज्जा नहीं खा सकता। क्या हम पिज्जा के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे सर, आप खाइए, लेकिन हाउ दे हैव मैनेज्ड टू सस्टेन 1 ईयर और वहाँ पे Yeah, sure. Okay. So I think we should come to the topic that we have in our motion. Simple, the topic was that this House believed that the repeal of Farm Law is a failure. It is a failure of the entire government, especially the central government who has proposed the 3 bills. And the government has, and it was failed to negotiate before the haphazard farmer protest. Just one key word in the motion itself, that it was a very unorganized protest on the Singhu borders and other areas, complete blockade, all these things have happened. So it is a failure because अब तक के ओपिनियन से यही आर्टिकुलेट मैं कर पाई कि सबका मानना है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल हो गई। कुछ और प्रेरणा जी, तबकों को मेरा एक क्वेश्चन और है कि चलिए मानते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई इस किसान आंदोलन को संभालने में, व्हाट वाज जुडिशरी डूइंग, जो हर जगह सुओ मोटो ले जाती है हर जगह। जैसे पहले जैसे कि जब मतलब यज्ञ और हवन होता तो फिर राक्षसागर मारते हैं, अब ये कहाँ गए? क्योंकि चलिए राइट टू है प्रोटेस्ट आपका, ठीक, बट व्हाट अबाउट राइट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ लैक ऑफ पीपल, जिनको आधे घंटे का रास्ता है और 1 घंटे में जा रहे हैं। वहाँ के दुकानदारों का क्या होगा सर? वहाँ के टोल प्लाजा का क्या होगा? वहाँ के जो भी पीपी पेट्रोल पंप्स हो गए उनका क्या होगा? जो भी रोडें खराब की हैं आप लोग 1 साल से बैठ के, क्या जब आप वहाँ से हटेंगे, जब भी हटेंगे 1 साल 2 साल 5 साल बाद, क्या गवर्नमेंट उसको फिर से उसको रिपेयर ही कराना पड़ेगा किससे? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जुडिशरी क्या बोलेगी? जुडिशरी CAA के बाद एकदम आखिरी में ये कही कि ये अच्छा नहीं था, आप ऐसे रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। अभी I think we had a debate, but still I request Rashmi, Neelam, Abhinav, if you want to answer this question. Suryash, your point is right that what were the judiciary doing, that we can take few examples of the, we can say, annoying of judiciary. When the implementation of NDA reforms, National Defense Academy, when the girls are introduced to appear the exam, then NDA says that we are not prepare very well to improve or implement these things. Then judiciary says that you have to be ready. You are NDA. You have to be ready. What are the what are the improvements? Then it is some kind of the, we can say, the annoying of the judiciary, that judiciary is imposing any decisions to us for us. It is not for our topics, but in the few topics we can say that. So सर, इस I जुडिशरी agree के with पास, मैंने इस डिबेट में पहले भी ये लाइन हम कह चुके हैं कि इस जुडिशरी के पास दही हांडी की क्या हाइट निकली है ये डिसाइड करने का हम अपना कर लेंगे। इस जुडिशरी के पास दही हांडी की हाइट डिसाइड करने का मौका रहता है सर। सर, इस आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ? रेप, हत्या, लूटपाट से लेकर के क्या क्या नहीं हुआ? yes, I am उनके ऊपर agree क्या with you. और जो 26 जनवरी को हुआ, क्या इसमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स नहीं थे? चलिए आप हमको मतलब कि आप हमको मतलब अंधभक्त बोल दीजिए। No. I agree with क्या you. I'm saying that. Okay. So Aditya, can you repeat your question? I think Neelam could not hear that. कौन सा I think it क्वेश्चन दाग दीजिए। judici. Yeah. I think Neelam, it was related to judiciary. His question was, what was judiciary doing?
I mean, all the नहीं नहीं, circumstances. फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड इनका है, फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड। मेरा ये बोले एक्चुअली couldn't hear the question Okay. properly because I was thinking about the point funding from outside। नहीं, फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड में हमारा ये था कि मैंने एग्जांपल दिया कि अभी हम अगर 7 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं और कहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग को कैंप करना हो तो कितने सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारा अच्छा खासा पैसा लगता है कि हम लोग को पूरा एक तरीके से घर ही ले जाना होता है, हर सामान ले जाना होता है। भारत का किसान जो कि सो कॉल्ड बहुत ही गरीब है, उसकी फोटो ऐसी है कि खेत के दम की किरी दरारें फटी हुई हैं और बारिश नहीं हो रहा है, वो ऐसे मतलब आँख पे अपनी 4 उंगलियां रख के ऊपर बादल को मतलब ये देख रहा है। वो ये 1 साल तक कैसे सस्टेन कर ले गया? उनके पास इतने रिसोर्स कहाँ से आ गए कि वो सस्टेन कर गया? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और मैं पूरी तरह से एग्री भी हूँ। और हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पूरी तरह से किसानों की गलती है, पर कह सकते हैं किसानों की गलती नहीं सर, गलती पूरी किसान की, पूरी सरकार की। जब आप जानते हैं कि वो किसान नहीं है सर, वो किसान मतलब फिनिश कर लीजिए फिर उसके बाद बोलिए। Yes, तो ये था कि अगर वो किसान, आप कह रहे हैं किसान की गलती है, सर किसान जो होते हैं तो उनके अधिकतर किसान जो है वो इलिटरेट है, मतलब उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और जब आपने कहा कि 10 करोड़ कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट सही है, क्योंकि आपको अगर कोई आप योजना ला रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपको उसको एडवर्टाइज करना चाहिए। और जो किसान जो एक सबसे लोवेस्ट जो लेयर है, उसका किसान जो बैठा हुआ है, उसको कुछ ज्ञात नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कभी समाचारों से भी अभी अवगत नहीं हो पाता है क्या पॉलिसीज बन रही हैं। तो जो भीड़ की मानसिकता होगी वही करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं, जो कहेंगे वही सही होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि आप ये करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट और जो उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको बताने में हमको लगता है कि नेगोशिएशन जो कह सकते हैं उनमें से थोड़ी दिक्कत हुई है। और किसानों की गलती पूर्णतः नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सर ये सोचेंगे। छोड़िए, हमारा एक क्वेश्चन 2 3 4 5 लोग हैं हमको लेकर के, सबसे है कौन कौन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा था, किसको लग रहा था कि नहीं अगर ये आंदोलन हो रहा है तो किसान हित के लिए हो रहा है और ठीक हो रहा है? अभिनव जी आप बताइए। Before हम that, सब I have one question. Can I ask? नहीं, पहले Okay, अभिनव okay. Yeah, sure. कि First of किसान all, आंदोलन किसान, हाँ जी बोले। हाँ, okay. What was a question which has been asked by Aditya? If anyone want to reply one by one. So I think that is very very important question, because we are talking about a revolution. We are talking about a kind of haphazard situation. तो उस पर हमारा अपना क्या व्यू पॉइंट है? Who are supporting the entire this movement? That is very important. So one by one. I was Abhinav? supporting, yes, I was supporting the amendments and improvements for the farm bills, not totally for the protest. नहीं अभिनव मेरा क्वेश्चन ये है कि इस किसान आंदोलन, सिंपल एकदम एकदम न्यूज़पेपर हेडलाइन के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, एकदम मतलब उसी भाषा में, कि किसान आंदोलन को समर्थन कौन कौन दे रहा था? कोई नहीं दे रहा था। Means everybody was with the government. No, I was supporting. Okay, you are supporting the government. So I am why asking among us who are supporting and who are opposing that. Especially stakeholders का तो हम देखेंगे कि वो कौन कर रहे थे, support कौन नहीं कर रहे थे. But हमारा क्या opinion है? Who are supporting this entire, protest? So as Neelam has said that she was supporting, and she yes, she was is. supporting the Kisan Andolan. So my question is, what Kisan were demanding for? And if the demand is completed now, what are they demanding and why are they demanding? हिंदी में मैं बोलूँ। या वो मतलब इसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके जितने मतलब लोन्स हैं वो भी माफ़ कर दिए जाए, उसके बाद जो मतलब सब्सिडीज़ हैं वो भी दिया जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि किसानों को और एग्रीकल्चर को एम्पावर करने के लिए, एम्पावरमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। तो नीलम जी, वो प्रॉपर स्टेप्स क्या होंगे कि आप एमएसपी दे दीजिए और उनको
नहीं देती या है। MSP। मैडम, Oh, ये 70 साल से ये होता आ रहा है, अभी तक तो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। एमएसपी मिल रहा है, okay. सब्सिडी मिल रहा है, बिल बट इन लोग का कर्जा माफ हो आप रहा है, ये भी और जानना ये जो चाहिए कांग्रेस आपको ने कि ऐलान, सारे किसान मतलब योग्य नहीं है, वो सारे लोग मंडीज में अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करते हैं। बहुत मतलब बहुत ही कम परसेंट में किसान है जो मतलब अपना प्रोडक्ट मंडीज में सेल कर पाते हैं, तो इसीलिए तो हम ये चाहते हैं कि इसको मतलब स्ट्रेंथ किया जाए। Okay, okay. Sorry to interrupt Neelam and Aditya, because the clock shows 8. So let's come to a conclusion, and you can continue after that because I have to leave. So I think we all have accepted this, that it is the failure of the central government to just, and the government is there on the back foot before the unorganized, before such a haphazard protest which is led by a very small section of farmers. So I think it was a very important issue अगर हम agriculture को देखें, but still today is very less participation. I think we have to conduct one more debate so that more people can articulate their opinion, and that's all for today. Thank you for joining.